دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاق سے سندھ حکومت کی منتقلی کے بعد گرین لائن BRT کی رائڈرشپ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ 6 ماہ میں یومیہ مسافروں کی تعداد 52,000 سے بڑھ کر 72,000 تک جا پہنچی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ رائڈرشپ کو روزانہ 1.5 لاکھ تک لے جایا جائے گا۔ گرین اور اورنج لائن بسوں کو آپس میں منسلک کرنے سے سفری سہولت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نان فیئر ریونیو ماڈلز کے تحت ان منصوبوں کو خود کفیل بنانے اور شہریوں کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ جماعت اسلامی کا لانگ مارچ قافلہ لاہور میں موجود ہے۔ 3.5 گھنٹے سے جماعت اسلامی رہنماؤں اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں عمران لطیف سے۔ عمران لطیف، کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے مذاکرات کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ بالکل، جماعت اسلامی نے 11 بجے آج لاہور سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ لے کے روانہ ہونا تھا، مگر تقریباً 11:30 بجے سینئر وزیر پنجاب کی مریم اورنگزیب جو مرکز ہے جماعت اسلامی کا منصورہ، وہاں پہنچی۔ ان کے ساتھ جو وزیر قانون تھے شعیب برد وہ پہنچے، اور جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں لیاقت بلوچ، امیر العظیم اور ہدایت اللہ بلوچ کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور 3 سیشن جماعت اسلامی کے حکومتی جو وزراء ہیں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے زور یہ دیا گیا تھا کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے کہ سیکیورٹی کنسرنز کو پیش نظر جماعت اسلامی اپنا جو بھی احتجاج ہے، لانگ مارچ ہے، اس کو آج لاہور میں ہی ختم کر دیں۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے گی، ایک تجاویز جو وفاقی حکومت کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اور جو مطالبات ہے جماعت اسلامی کے احتجاج میں تو اس پر پیش رفت ہو سکے گی۔ تو اب 1 سے 2 نکات پہ اتفاق ہو گیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد جماعت اسلامی کے رہنما سینئر وزراء پنجاب حکومت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو لانگ مارچ ہے وہ راولپنڈی سے جا کے ختم ہو جائے، مگر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ اپنا لانگ مارچ ہے جو اسلام آباد لے جانے چاہتی ہے۔ تو اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ سے جماعت اسلامی کے رہنما یہاں پر میڈیا پر آ کے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں گے۔ جی، اب سے کچھ ہی دیر بعد پریس بھی کی جائے گی اور تمام معاملات کو میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ عمران لطیف اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ نوشہر و فیروز کی تحصیل کنڈیارو میں اغوا کے بعد قتل ہونے والی لڑکی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قتل کا مقدمہ مقتولہ والد کی مدعیت میں محبت دیر جتوئی تھانے میں 2 ملزمان لالا ڈینو اور عبدالجبار چنا کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ عدالت نے پولیس کو FIR خارج کر دی ہے۔ میر پور خاص کی ATC نے ڈاکٹر شاہ نواز کمبر قتل کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کی درج کردہ FIR خارج کر دی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت اب وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے جانب سے درج مقدمے کے تحت کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ FIA میں درج مقدمے میں سابق DIG میر پور خاص جاوید جسکانی، سابق SSP میر پور خاص اسد علی چودھری، سابق SSP عمر کوٹ آصف رضا بلوچ، سابق انچارج CIA عنایت زرداری، سابق SHO سندھڑی نیاز کھوسو، پیر عمر جان سرہندی سمیت 46 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ گڑھی یاسین تھانہ کاہجہ کی حدود میں ڈاکوؤں نے لاڑکانہ سکھا روڈ کو بند کر کے سینکڑوں گاڑیوں کو لوٹ لیا ہے۔ دوران واردات ٹرک نہ روکنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، جبکہ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت شاہ نواز بروہی کے نام سے ہوئی ہے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ 2 گھنٹے تک پولیس چوکی کے سامنے ڈاکو لوٹ مار کرتے رہے لیکن پولیس نہ آئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس امن و امان کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ شیخو پورہ میں گردہ فروخت کرنے والے گروہ کو محکمہ صحت اور پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ نجی اسپتال میں محسن نامی شخص محسن کا گردہ نکال کر افریقی خاتون کو دیا جا رہا تھا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق ملزمان سادہ لو اور شہریوں کو ویزے کا جھانسا دیتے تھے، جس کے بعد ملزمان گردے نکال کر مہنگے داموں میں فروخت کیا کرتے تھے۔ متاثر شخص کے والد کا کہنا ہے کہ ملزمان نے میرے بیٹے کو بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر گردہ نکالا۔ پولیس نے اسپتال
अस्पताल इंतजामिया और मोहसिन के वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया। चिश्तिया में थाना शहर फरीद की हुदूद में कुत्ते के काटने से बच्चा शदीद जख्मी हो गया है। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर DPO ने नोटिस ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खतरनाक कुत्ता पाल रखा था जो आने जाने वालों को काटता था। अभी आपको बताए थे हम कि चिश्तिया में ही अफसोसनाक खबर का वाक़या पेश आया था, जहां पर सख्त गजीदगी के वाक़यात बहुत ज़्यादा रोनुमा हो रहे हैं। लेकिन अभी खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक, इसके अलावा कांस्टेबल जख्मी हो गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान मानी को असलहा रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे कि 5 नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक और कांस्टेबल फैसल जख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए हैं। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। और ढेरकी में डकैती की वारदातें रोजमर्रा का मामूल बन चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं फ़हीम अली शेख। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अमन अमान की तो ज़िले घोटकी में अमन अमान इस वक्त जो है तशवीश का शिकार हो चुका है। आए रोज़ डकैती की वारदातें, लूट मार का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता एक रोज़ कबल भी जो है डाकुओं ने, मुसल्लह डाकुओं ने कौमी शाहराह पर जो है एक केबिन वाले को लूटने की कोशिश की। लूटने के बाद उसको गोलियों का निशाना बनाया, जिसके बाद केबिन का जो मालिक था वो जाँ बाग हो गया। बेदर्दी से डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया। अहम ज़राए का ये भी कहना है कि टारगेटेड ऑपरेशन में 3 जो डाकू हैं वो जख्मी होने के भी इत्तलात आ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, इस वक्त इस सिलसिले में हमारी SSP घोटकी अनवर खेतरान से बात हुई। उनका कहना है कि कच्चे के इलाके में शर गैंग के खिलाफ ये टारगेटेड ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कच्चे के डाकुओं को जो है निस्तो नाबूद नहीं किया जाता। जी अभी रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां हालिया बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों की सफाई का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसके बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी, जो इस वक्त रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं। जी आमिर, आगा कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद दिन कबल हैदराबाद में होने वाली बारिशों के बाद बारिश का पानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन जमा रहा। हैदराबाद शहर में से गुजरने वाले बरसाती नाले जिनकी सफाई अब तक नहीं हो सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी में। यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। 6 हफ्ते 3 हफ्ते पानी नहीं निकलता, और पानी जो अगर निकल भी जाए तो वो कीचड़ गप ये वो सब हमारे इधर है, और पूरे शहर का पानी हमारे इस रेलवे कॉलोनी इस नाले से गुजरता है। तकरीबन इसको 2 साल हो गए इस नाले को, या 3 साल हो गए, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वैसे ही गंदगी, ढेर, बीमारियां सब यहाँ फूट रही हैं, और जो पानी वैसे क्या वैसे ही खड़ा हुआ है जगह जगह पे। जो निकला उसके बाद कोई सफाई यहाँ नहीं हुई है। जिला इंतजामिया की जानिब से, बल्दिया की जानिब से अब तक जो है नालों की सफाई नहीं कराई गई है, जिसके बायस अब होने वाली बारिशों में हैदराबाद शहर के डूब जाने का खतरा है। जी सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक भी आपको आगाह करते चलें। गिलगित बल्तिस्तान शहर बाबूसर पे लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी TV चैनल की एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। ताहम थक, नियात, थोर और खंबरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिरीन की बहाली का काम जारी है। मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली की फराहमी के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जबकि सूबे भर में इरीगेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी है। घांचे, बलस्तौर, गिलगित गजर और दीगर इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहाली में वक्त दरकार है। मानसून की बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होने से लिया के नशीबी इलाकों में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। 50 से जायद मवाज़ात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब से घर, स्कूल, मसाजिद, तैयार फसलें, सड़कें, अस्पताल पानी में डूब चुके हैं। इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मुज़म्मिल अब्बास।
मानसून की बारिशों के बायस दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। 4 लाख क्यूसेक के रेले ने जिला लिया की 80 किलोमीटर की तवील पट्टी के निशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। करोड़ लाल ईसन, लिया और कोट सुल्तान के 50 मुआवजात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब आ गई। पानी घरों में दाखिल हो गया तो स्कूल, मसाजिद, अस्पताल भी पानी से भर गए। सड़कें, फसलें और जमीनें दरियाबर्द हो गई। कपास, कमाद, चावल, तिल की फसलें दरियाए सिंध निकल गया। सैलाब के बायस इलाका में की नकल मकानी पर मजबूर है। बहुत ज़्यादा नुकसान थी ना बेसारा डेग गिनो गन्ना, तिल्ली, चावल वगैरह बहुत नुकसान थी ना बेसारा इलाके का। रोड डेग गिनो, रोड बिल्कुल खाली। तौंसा पुल का गाइड बंद टूटने से मौजा समर अन-नशेब मुकम्मल तौर पर डूब गया। गाइड बंद के शिगाफ को पुर करने के लिए जाने वाला एक्सीवेटर भी पानी की नजर हो गया। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद का कहना है कि ताहाल उनकी कोई मदद नहीं की गई। इतना बहुत ज्यादा सैलाब आया पे, तबाही बची पई है। असा मरियम नवाज साहब कोई आखते हैं कि इतना करेंगे साढ़े सड़कों का मुआयना किया वजे, कहीं को भेजा वजे नुमाइंदे को। इलाका मकीनों ने कहा सैलाब से चारे की किल्लत के बायस जानवर भी मरने लगे हैं और बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। पानी की सतह बुलंद होने से रास्ते बंद हो गए हैं। ये वस्ती सोबे वाली मंजोठा थी गया, वस्ती कुम्भार थी गई, वस्ती जंगेजा थी गया, वस्ती चांडिया, बस्ती रिंद सारे ये ज़ेरे आब इन दरिया दे विच। लिहाजा इंतजामिया कोई इंतजाम नहीं पे करें। ये शुद्ध सारी मखलूक जितनी है बेघर है, इन्हों का कोई आसरा भी कोई नहीं। जिला इंतजामिया ने कहा एक्सीवेटर को निकालने के लिए मजीद मशीनरी तलब कर ली गई है। नशेबी इलाकों में 1 दर्जन से जायद रिलीफ कैंप भी कायम है। सैलाब मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर सैलाब से होने वाले नुकसान का इजाला करने की अपील। मुज़म्मिल अब्बास, GTV न्यूज़, लिया। कोटद्दू दरियाए सिंध हेड तोसा बैराज में पानी की सतह में मुसलसल कमी आना शुरू हो गई है। हेड तोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, ताहम पानी की आमद में 70,000 क्यूसेक की नुमाया कमी हुई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नियाज अहमद जो इस वक्त हेड तोसा बैराज पर मौजूद हैं। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोटद्दू दरियाए सिंध हेड तोसा बैराज पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की सतह में जो है मुसलसल जो है वो कमी हो गई है। इस टाइम जो है हेड तोसा बैराज पर पानी का जो है उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। हेड तोसा बैराज पर इस टाइम जो है निचले दर्जे का सैलाब भी जारी है। हेड तोसा बैराज पर जो है 24 घंटे में जो है 70,000 क्यूसेक पानी की कमी देखने में नज़र आ रही है। इस टाइम जो है हेड तोसा बैराज पर पानी की जो आमद है वो 3,31,900 क्यूसेक है। पानी का जो अखराज है वो 3,20,400 क्यूसेक है। दूसरी जानब अगर बात की जाए नशेबी इलाकों की, नशेबी इलाके जो है ज़ेर आब आ गए थे। वहाँ पर दर्जनों जो बस्तियाँ हैं वो पानी की ज़द में आ गई थी और जो है फसलात भी पानी की ज़द में आ गई थी। वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जो है मदद की अपील भी की है। महकमा मौसमियात ने जो है मज़ीद जो है बारिशों की जो है पेशगोई कर दी गई है। अगर मज़ीद जो है बारिशें हुई तो हेड तोसा बैराज में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। जी, पिंडी भटिया में हजारों एकड़ सरसब्ज धान के खेत जो कभी खुशहाली और ज़राई तरक्की की अलामत थे, अब सैलाब की लपेट में आकर एक दिल दहला देने वाले दरियाए मंजर में तब्दील हो चुके हैं। जहां माजी में ज़रख़ेज़ी और खेती की रौनक थी, वहां अब पानी की बेकाबू लहरें नजर आती हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे यासिर बशीर वेक। पिंडी भटिया में हजारों एकड़ सरसब्ज धान के खेत जो कभी खुशहाली की अलामत थे, अब सैलाब की लपेट में आकर दरियाई मंजर पेश कर रहे हैं। कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके घर मुनहदम हो चुके हैं और वो बेसहारा सावन के बादलों की मानंद आंसू बहाते कसम पुरसी की तस्वीर बने खड़े हैं। इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां मुतासरीन को कुछ सहारा देने की कोशिश की जा रही है, मगर ये दर्द और नुकसान की शिद्दत को कम नहीं कर सकते। इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशां है ताकि ये लोग जल्द अज जल्द इस अलमनाक सूरत हाल से निकल सकें। ड्यूरिंग दिस फ्लड हमने 6 मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कैंप्स इस्टेब्लिश किए। साथ साथ हमने शेल्टर कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए। जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे उनको फूड भी प्रोवाइड किया हमने। अलॉन्ग विद दिस हमने क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी इंगेज किया ताकि जितने लोग इमोबिलिटी का शिकार हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनके घरों तक पहुँच के उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकें। इंतज़ामिया अब भी सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की कोशिश कर रही है।
काश्तकारों समेत सैलाबी पानी से गिरने वाले घरों के मकीन हुकूमत की जानिब से बड़े रिलीफ पैकेज के मुंतज़िर हैं, जिनमें बिजली के बिलों की मुआफ़ी, मुनहदम घरों की तामीर और फसलों के नुकसानात की भरवाई, ताकि सैलाब में होने वाले नुकसान का अजाला हो सके। कैमरामैन टीम के साथ यासिर बशीर विरक, GTV न्यूज़, पिंडी भटियाँ। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस समीर सदात की बस्ती नौरंग शदीद मुतासर हुई है। सैलाबी पानी बस्ती के मकानात में दाखिल हो गया, जबकि सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा भी ज़ेरे आब आ चुका है, जिसके नतीजे में किसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हसनैन अहमद। जी हसनैन। जी कोहे सुलेमान पर मानसून की शदीद बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तुग़यानी आ गई है। दरियाए सिंध के कटाव से समीना सादात की बस्ती नौरंग वाला में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ चुका है और इलाका मकीनों के घर भी मुतासर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सैलाब आ गया है भला 2010 में पहले आया होना है, सारे घर करेक थी चुके हैं, वाल कोई इंतजाम ही नहीं है, सारे को कोई नहीं पूछा, कैसे नहीं पूछ रही वाल असा इतना जलील ख्वार था। जी जैसा कि आपने शहरी से जाना, उनका यही कहना था कि 2010 के बाद अब यानी कि जो पानी है वो हमारे घरों के करीब आ चुका है और हमारे घर भी मुतासर हो चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। जी